So these are the two methods. लेकिन इनके अलावा भी there are number of other methods that are in your chapter. So पहले just look for the list जो हमारे separation के methods हैं. तो hand picking, threshing, this we are going to learn today. Then winnowing. The other one is sieving. फिर है sedimentation, decantation and filtration. Next is evaporation and then condensation. So these 7 are the processes by which separation can be done. ये आपके अभी कोर्स में है. So जैसा है आज हम इन 2 पर we are going to put focus on, और जैसे जैसे we will move in the session, chapter and with the session, तो क्या होगा, you are going to learn more about methods and what technique do they use when we follow such type of methods. So we are moving to the process of hand picking. Hand means हाथ, picking means कुछ उठाना. तो हाथ से जब हम कुछ उठाते हैं that is known as hand picking. तो now you know कि जो हमारे separation technique when it happens, when we want to separate 2 different components या 2 different things that are in a mixture. और ये जब एक mixture होता है means number of things. और ये भी आप learn कर चुके हैं कि either we put for the how useful that thing is या how harmful is the thing. So hand picking क्या है? If there are pieces of stone या husk या broken grains या particles of other grain present in the grain that we want to use, we remove the unwanted and harmful pieces by hand. So आपका एक grain है, suppose आपका तूर दाल है आपके पास, and in that तूर दाल कोई और दाल मिक्स हो गई है, वो छोटा ही अमाउंट में कुछ मिक्सअप हो गया है. तो what will you do? You are going to separate that तूर दाल उसको करके, क्योंकि द अदर दाल ऐसा नहीं है कि इट इज हार्मफुल, बट आपके तूर दाल का टेस्ट खराब कर देंगे, तो वो आप उसको सेपरेट हाथ से पिक करके कर सकते हैं. तो ये इन केस अगर बाय एक्सीडेंट आपकी ये 2 दालें मिक्स हो गई. नाउ जनरली क्या होता है, व्हेन वी बाय एनी ग्रेन, तो व्हाट हैपेंस, उसमें हम अगर ध्यान से देखें तो कभी कभी हमें छोटे स्टोन पीसेस मिल जाते हैं. एंड लाइक इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ राइस, तो उसमें हस्क जो ब्राउन कवरिंग होती है वो आ जाता है. ब्रोकन ग्रेन्स मीन्स हमें वो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स मिलते हैं जो वी जस्ट वांट टू रिमूव, क्योंकि हमें बड़ा ग्रेन चाहिए होता है, तो वी रिमूव. तो ये जो सारी थिंग्स आ गई हैं, ईदर अ स्टोन और हस्क और ब्रोकन ग्रेन्स, तो this can be removed by hand. So when we remove these things, either we can say this stone to be a impurity, and तो उसको remove जो hand से करते हैं that is known as hand picking. So is this thing clear to you? कि when we pick out the required thing या not useful thing by hand, then that process is known as hand picking. So see, so अब आपको पता चला ये जो एक simple process है, it is a scientific process also, कि when we are separating out the useful and the not useful thing, so this is the thing that we do generally in our daily routine. Now where method of hand picking can be used. So in the very beginning of this session you have seen the list of 7 methods. So this means अगर ये अलग अलग मेथड हैं तो उनका यूज भी अलग अलग पर्पस के लिए होगा. Not with every impurity या every separation process the same method can be followed. So hand picking, in what cases we can go with the option of hand picking? So when separating slightly larger sized impurities like the pieces of stone husk from wheat. So when
the size of the particles are that much big that we can pick by our hand. अगर बहुत छोटा होगा, what do you think? अगर sand होगी तो can we pick sand by our fingers या by our hand? नहीं. तो means the sizes are pretty big and so those pieces can be removed from the wheat या any other grain. कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन if the size of the impurity is pretty big for us to pick by our hand या by our fingers. The quantity of impurities is small. This is also very important. कि quantity आपकी small है, ये नहीं बहुत ज्यादा है. अगर बहुत ज्यादा होगी then think, would it be easy for us to do it? Suppose आप क्या है घर पे, if you are doing it to before preparing दाल या rice, you are just checking out, तो कितना है 1 या 2 बाउल्स होती हैं and you can do easily. Suppose अब आपके सामने 50 kg है, तो can you go with the option of hand picking? डिफिकल्ट होगा ना. तो इसमें इसलिए द क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज इज स्मॉल, जो इम्प्योरिटीज है वो थोड़ी हैं, देन वी कैन गो विद द प्रोसेस ऑफ हैंड पिकिंग. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द अदर प्रोसेस डेट इज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या है? इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स ऑफ व्हीट और पैडी. पैडी मीन्स राइस फ्रॉम द स्टॉक्स ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप. That process is known as threshing. कि ये स्पेसिफिकली इसीलिए यूज होता है कि when we have to separate grains of wheat या rice from the harvested crop. क्योंकि जैसा if you remember मैंने फर्स्ट सेशन में बताया था, जैसे गेहूं है तो गेहूं हमने हार्वेस्ट कर लिया, तो लेकिन हमारा ग्रेन्स आर इम्पोर्टेंट. उसका ऊपर जो ब्राउन कवरिंग है that is not that important for us. तो हाउ डू वी रिमूव? तो वी रिमूव दैट बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग. स्टॉक्स आर ड्राइड. अब व्हाट इज द प्रोसेस? स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. तो आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग, क्या होता है पूरी क्रॉप को छोड़ दिया जाता है कि जो ऊपर का जो कवरिंग है दैट वी आर नॉट लुकिंग फॉर, तो उसको वी वॉन्ट इट टू गेट ड्राइड. जब वो ऊपर का ड्राई हो जाएगा देन वी कैन गो विद द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग. ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन सीड्स अटैच्ड टू इट. और ये जैसे आपका जस्ट थिंक अबाउट, ये क्या होता है आपके, आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन थिंक अबाउट दिस ग्रेन. किसी जो हमारा है उसमें आप इवन अगर आप राइस का सोच रहे हैं या आप व्हीट का सोच रहे हैं, क्या इसमें इस टाइप से इसकी कवरिंग होती है और यहां सीड्स आर प्रेजेंट. सो हमारा मेन पर्पस, व्हाट इज द पर्पस, कि ये जो इसका जो ब्लू से मैंने उसका जो ब्राउन कवरिंग है टू रिमूव दैट. जब वो रिमूव हो जाएगा तो अंदर का जो ग्रेन पार्ट है वी वांट दैट, तो दैट वी टेक इट आउट. नाउ आई विल शो यू द पिक्चर. दिस इज द वे थ्रेशिंग इज डन. तो प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग, लेट अस अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस क्या होता है? स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. तो इस पिक्चर में आप ये देखिए, ये क्या है, जो हमारा पूरा जो ड्राइड पार्ट हो गया है उसको दे बीट. बीट मीन्स they put pressure on some stone and something, they thresh it, and then what happens, जो dry part है that becomes separate and the grain parts come on the other side. Sometimes the threshing is done with the help of bullocks. So ये क्या है? This can be done manually, लेकिन sometimes we use animals. We use animals so that when they put it down with the pressure, that part can be separated. Machines are also used to thresh large quantities of grain. So you see here,
It can be done manually. अगर हम यहाँ पर के this can be done manually. Manually means a person can do by hands, or it can be done by animals, like we have seen about bullocks, or it can be done by machines. So machines, just remember, whenever we talk about machines, this means the quantity is quite large, quite big. So when the quantity is good enough that it is very difficult for us to do manually, then we go with the machines. Yeah, we take support of any other, either animal or machines. वहां पर है तो जस्ट थिंक अबाउट द प्रोसेस. जो हम खुद अपने हैंड से प्रेशर दे रहे हैं वो क्या होगा, मशीन्स ऐसी होंगी कि द क्रॉप कैन बी सेपरेटेड आउट, मीन्स जो हमारा ग्रेन पार्ट है डेट कैन बी सेपरेटेड आउट. तो दिस इज द थिंग ऑफ थ्रेशिंग. सो एक बार जो हमने थ्रेशिंग का देखा, थ्रेशिंग मेनली गोज विद द व्हीट एंड ग्रेन पार्ट, पैडी पार्ट, राइस का, because these are the seeds that are covered with a husk. Husk means the brown covering, and that can be done manually by animals or by machines. Now just look at the process कि कैसे ये है. इसमें one thing I just want to show you, ये black black से dots जो हैं, this is the grain part, और ये जो brown से आपका आ रहा है, this is the husk. और ये जो इसके हाथ में है, दिस इज द हार्वेस्टेड क्रॉप. यू कैन से हार्वेस्टेड क्रॉप. सो इसके हाथ में पूरा एक बंच इज देयर, और जब वो बीट कर रहा है, ग्रेन्स आर गेटिंग सेपरेटेड एंड हस्क इज गेटिंग सेपरेटेड. सो सी, आई एम यूजिंग द वर्ड सेपरेटेड. नाउ यू गेट द मीनिंग सेपरेटेड के कैसे. दिस इज द प्रोसेस कि हम हस्क एंड ग्रेन पार्ट को वी आर सेपरेटिंग. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न टू मेथड्स ऑफ सेपरेशन, दैट इज हैंड पिकिंग एंड दूसरा कौन सा लर्न करा है? थ्रेशिंग. यस. सो अभी आपका क्या काम है? जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. हैंड थ्रेशिंग में भी हम हाथ का देख रहे हैं, लेकिन हैंड पिकिंग में वी आर पिकिंग आउट, हम उसको हाथ से लेके अलग कर रहे हैं. थ्रेशिंग में वी आर बीटिंग इट. मीन्स बीटिंग का मीनिंग ये है वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन इट सो दैट ग्रेन्स कम अपार्ट. सो दीज टू प्रोसेसेस वी हैव लर्न टुडे. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू लर्न some more processes of separation that I will take in the next session. Till then, take care. Bye.